Good morning, students. We discuss 8 units to express the concentration of the solution in our previous lecture. And now, today, we will discuss about the next topic, that is solubility of a substance, solubility of gases and solids in liquid. So, first of all, what is solubility? The solubility of a substance expresses the maximum amount of it which can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. So इसका क्या मीनिंग है solubility का, कि कोई भी सब्सटेंस की मैक्सिमम कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, दैट इज नोन एज अ solubility. So solubility of a substance depends upon the lots of factors, like nature of solute, nature of solvent, temperature and pressure. So इससे पहले हम solubility of solid in liquid में कुछ terms के बारे में पढ़ेंगे. So first term is known as a dissolution. So what is this dissolution process? When a solute is added to the solvent, then the solute particles goes into the liquid and the concentration in the solution increases. This process is known as a dissolution. So what is dissolution? जब हम solute को dissolve करते हैं किसी particular solvent में, then the solute की concentration जो है वो increase होनी शुरू हो जाती है, और the process is known as a dissolution. ठीक है. And next term is crystallization. So what is crystallization? जब particles, solute particles in solution, then they collide with one another. They collide with one another and get precipitated out. The process is known as a crystallization. So crystallization की example हम लेंगे, जैसे हम एक वाटर में शुगर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है? तो पहले हम अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व की, तो शुगर ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है? और फर्दर हमने शुगर की अमाउंट इंक्रीज़ करनी शुरू कर देते अगर करें, तो क्या होगा? एक टाइम, एक स्टेट ऐसी आएगी जब सॉल्यूशन जो शुगर है वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगी. That that state of solution is known as saturated solution. So what is saturated solution? The solution in which no more solute can be dissolved at any condition, at conditions, given condition of temperature or pressure. So उस solution को हम क्या कहेंगे? Saturated solution, जिसमें दोबारा solute dissolve नहीं हो सकता. That solution is known as a saturated. So then हम उस स्टेट को कहेंगे कि शुगर, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देन शुगर ऐड कर दे, थोड़ी और शुगर ऐड कर दे, तो शुगर डिसॉल्व होने के बाद इमीडिएटली क्रिस्टलाइज कर जाएगी. क्रिस्टलाइज मीन इसकी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी. सो दैट स्टेट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम स्टेट. क्या क्या कहेंगे उसको? इक्विलिब्रियम स्टेट. सो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि सॉल्यूशन में जितनी शुगर डिसॉल्व होनी है हो जाएगी. उसके बाद अगर हम दोबारा शुगर ऐड करेंगे, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी. So this state is known as a equilibrium state, and the solution is known as a saturated solution. Our next term is unsaturated solution. So what is unsaturated solution? In which more solute can be dissolved at the same temperature is called unsaturated solution. So unsaturated solution means अभी दोबारा और solute dissolve हो सकता है उस solution में. So solution is known as a unsaturated solution. So ये कुछ term थी जो हमें पता होनी चाहिए about the solubility of solid in liquids. So अब हम next factors के बारे में पढ़ेंगे. So what are the factors which affect the solubility of a solid in a liquid? So first factor is nature of solute.
and second is nature of solvent. So first factor is nature of solute and the solvent. So ये nature of solute और solvent कैसे इफेक्ट करेंगे अगर दो दो कंपोनेंट आपस में कब डिसॉल्व करेंगे, जब उनकी नेचर सेम होगी। जैसे फ्रेंड्स हैं, तो दो फ्रेंड्स कैसे बनती है, अगर उनकी नेचर सेम है तो फ्रेंड्स बन जाएगी, ठीक है। अगर उनकी नेचर नहीं सेम तो वो डिफरेंट डिफरेंट सीट पे चली जाएंगी, ठीक है। तो यही रूल अप्लाई होगा इसमें, nature of solute and solvent में, and that rule is known as a like dissolves like। अगर solute और solvent की nature same होगी तो solute easily solvent में dissolve हो जाएगा, और अगर इनकी nature different होगी तो solute and solvent dissolve नहीं होंगे, ठीक है। और nature से क्या हम मीनिंग है, nature means if the solute is polar in nature and solvent is also polar, and example of polar solvent is water, and if the solute is also polar, then solute solute is easily dissolve in this solvent, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम लेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड इज आयनिक इन नेचर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इज आयनिक और पोलर इन नेचर, सो इट कैन बी easily dissolve in water, ठीक है। वेयर एज दी सम नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम ले लेंगे बेंजीन और CCl4, और जो सोडियम क्लोराइड है वो इजीली बेंजीन में डिसॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की नेचर पोलर है और बेंजीन की नेचर क्या है, नॉन पोलर। सो अब उन दोनों की अगर नेचर डिफरेंट है तो इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे और सोलबिलिटी इफेक्ट होगी, सोलबिलिटी कम हो जाएगी। वेयर एज कोई हम अगर कोई नॉन पोलर सल्यूट ले ले, नॉन पोलर सल्यूट जो है वो हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं नेप्थलीन, ठीक है। और एंथ्रासीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेप्थलीन बॉल्स आती है ना, वो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है। और शुगर भी थोड़ा सा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, बट इजीली डिसॉल्व हो जाता है, बट सोडियम क्लोराइड से कम इजीली डिसॉल्व होगा। तो हम नॉन पोलर सोल्यूट नेप्थलीन ले लेंगे, नेप्थलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा, बट नेप्थलीन बेंजीन और CCl4 में डिसॉल्व कर जाएगा। तो इस पॉइंट में हमने क्या देखा, लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम होगी तो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, एंड इन सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। द टेम्परेचर आल्सो इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो कैसे, देखो, जो डेजोल्यूशन प्रोसेस होते हैं, डेजोल्यूशन प्रोसेस मीन जब सोल्यूट डिसॉल्व करता है सॉल्वेंट में, देन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज भी हो सकती है, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। इट मीन जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो टेम्परेचर से वेरिएशन, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा सोलेबिलिटी पे, ठीक है। अगर आपका डेजोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक मीन्स डेजोल्यूशन प्रोसेस is endothermic means when solute is dissolved in solvent, it requires some amount of heat, ठीक है। और it absorb this dissolution process absorb the amount of heat, the process is known as dissolution process is endothermic in nature। अगर आपका dissolution process endothermic है, then टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेजोल्यूशन प्रोसेस को हीट चाहिए और हम हीट प्रोवाइड करेंगे विद बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो ये है फॉर एंडोथर्मिक। एंड इसके ऑपोजिट अगर आपका डेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक मीन हीट इज रिलीव्ड, ठीक है। तो जैसे ये सल्यूट है, इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ठीक है, डेल्टा H सॉल्यूशन इज नेगेटिव। सो इन दिस प्रोसेस द डेसोल्यूशन इज exothermic, and when we increase the temperature, then the dissolution decreases, the solubility of solute decreases, ठीक है। so पिछले for endothermic
the solubility increases with increase in temperature, whereas in this case the solubility decreases with increase in temperature. ठीक है, से ये दो केसेस थे टेम्परेचर के. एंड थर्ड वन, दैट case we will discuss tomorrow. And thank you, student.